بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، ابھی آپ نے ایپیسوڈ 1 کے اندر گنگوہی و نانوتوی کے معاشقہ کی کہانی سنی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ 2 لے کے حاضر ہوئے ہیں اور آج کچھ نیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں جامعہ بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ سنانا چاہتا ہوں، اور سکرین کے اوپر آپ کو یہ فتویٰ نظر آ رہا ہوگا، اور نام انہوں نے رکھا ہے جناب شرم و حیا انسانیت کا لباس۔ کہتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کے متعلق یہ پورا تفصیلی مضمون ہے اور بہت سی یہاں پر احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، اور خود علماء دیوبند کی حیا کا عالم یہ ہے کہ جناب چار پائیوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور جناب سینے پہ عاشق مشوق کی طرح ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے سابقہ ایپیسوڈ کے اندر ملاحظہ کر لیا۔ آج کچھ نیا ہے جناب، اور آج تو ہے ملفوظات حکیم الامت جلد اول، اور جناب مطبوعہ ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان، اور لکھنے والے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 286۔ سنیے جناب، شرم و حیا شاید اسی کو ہی کہتے ہیں۔ دیوبند کی شرم و حیا یہ ہے، ملاحظہ کر لیجیے آپ، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک حافظ صاحب کی حکایت ہے، گو فحش ہے۔ فحش کہتے ہیں کہ بڑی بے شرمی والی اور بےہودہ یہ بات ہے۔ تو وہ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ اگرچہ بڑی بےہودہ اور فحش قسم کی یہ بات ہے، مگر میں تمہیں سنا دیتا ہوں، سنیے جی۔ مگر توضیح کے لیے کافی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ شب کو حافظ جی پہنچے اور روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے، بلا کیا خاک مزہ آتا۔ صبح کو خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی مزہ نہ آیا۔ لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں، کہنے لگے اجی حافظ جی یوں مزہ نہیں آیا کرتا، مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے، مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے۔ اگلے دن حافظ جی نے بیچاری کو خوب ہی زد و کوب کی، مارے جوتوں کے بیچاری کا برا حال کر دیا۔ گل مچنے پر اہل محلہ نے حافظ جی کو بہت برا بھلا کہا، بڑی رسوائی ہوئی۔ صبح کو پہلے دن سے بھی زیادہ خفا ہوتے آئے اور شاگردوں سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حافظ جی مارنے کے یہ معنی ہے کہ اس کے موافق عمل کیا۔ تب حافظ جی کو معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے، حقیقت سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad.
upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment. Ameen. जी सुन लिया साहिबान आपने, ये जो रिवायतें इन्होंने अपने किताबों के अंदर लिखी हैं शर्म व हया के मुतल्लक, इंसानियत का लिबास है जी शर्म व हया। बिनोरी टोन का फतवा है, बिनोरी टोन के मुफ्ती साहब लिख रहे हैं, और ये जो किताबें लिख लिख के छापते हैं, और ये तबलीगी जमात जो तबलीग करती है, जनाब शर्म व हया तो इंसान का गहना है, हैं जी। और जनाब ईमान की 60 से ज़्यादा शाखें हैं, और हया भी ईमान की एक शाख है, हदीस पाक है। ये लोगों को सुनाने के लिए, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए ये है बच्चेबाजी, रंडीबाजी जनाब, और इस तरह की बेशर्मी वाली। ये मसनद तदरीस पे बैठे हैं अशरफ अली थानवी साहब, और बच्चों को ये सुना रहे हैं, और मसनद तदरीस पे बैठ के कुरान सुनाया जाता है, हदीस सुनाई जाती है, और ये इस किस्म की फहश और गंदी मिसालें दे दे के समझा रहे हैं। और बच्चे छोटे होते हैं, मेरे सामने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो भाई मैं एक उस्ताद, एक बाप की जगह पर होता है, और बच्चे तो वो नॉनसेंस है, वो इतनी अकल नहीं उनके पास। बाप ने, उस्ताद ने जो समझाना है वो उनके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाना है। आप मुझे बताइए कि जब देवबंदी मदरसे के बच्चों को ये तालीमात दी जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों को ये तालीमात दी जाएंगी, बड़े होके उनके हालात क्या होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हाँ जी। और जनाब हम तबलीग कर रहे हैं, हम तो लोगों को दीन सिखा रहे हैं। तबलीग ये होती है, फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। हमारा काम है कि बस नकल करना। हम तो असल हकायक पेश करने वालों में से हैं, बस फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला हमने नहीं करना। और जनाब कल वाली वीडियो के ऊपर एक कमेंट पढ़ के तो मुझे हैरानगी हुई जनाब। हाँ जी, कमेंट करने वाला वो कमेंट कर रहा है, कहने लगा उसको, हालांकि हम दिखा रहे हैं कि देखो देवबंद की किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब वो देवबंदी कमेंट ये कर रहा है, कहता है देवबंदी मौलवी जैसे भी थे, उलमा जैसे भी थे, उन्होंने तबलीगें तो बड़ी की हैं ना, रूहानियत की तबलीग तो बड़ी की है ना। तुम अपने करतूत देखो मौलवी, तू अपने करतूत देख मौलवी। ये जवाब होता है। जुबान बंदी करने का ये तरीका होता है। अगले को यानी ये जो कहती है ना, हमने तो जवाब दे दिया हुआ है, हमने तो अपनी सफाई के अंदर सब कुछ पेश कर दिया हुआ है, वो ये होती है जवाब। मतलब ये कि सवाल गंदम जवाब चना। भाई ये करतूत जो हमने आपको दिखाई, तो उसका कोई जवाब तो दो। सोलड किस्म का कोई बंदा कुरान दिखाता है, हदीस दिखाता है कि देखो जी कुरान के अंदर ये है, इस चीज़ की हमें इजाज़त दी गई है। हाँ जी, और कोई हदीस दिखाओ तो कोई बात समझ में भी आती है। कुरान हदीस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान हदीस तो इन चीज़ों से मना करता है, रोकता है, ये हराम है, ममनू है। कुरान हदीस में होगा तो दिखाओगे ना। तो फिर ये है कि अपने मदरसों का नाम तुम जो है ना वो कुरान हदीस के मदरसे ना रखो, फुहाशी के मदरसे रखो, कि यहाँ पर वो बड़े से टाइटल लगाओ, ऊपर बोर्ड लगाओ, यहाँ फुहाशी की तालीम दी जाती है, यहाँ गंदी गंदी तालीम दी जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि बिस्तर पे कैसे लटाना है और कैसे सीने पे हाथ फेरना है। यहाँ पर बताया जाता है कि निकाह के अंदर मज़ा कैसे आता है। मज़ा तो मारने में आता है। हाँ जी, तो वो मारने का फिर तरीका भी बताओ, ठीक है ना। शर्म तो नहीं आती, शर्म तो नहीं आएगी, शर्म है ही नहीं।
शर्म हो तो आए ना, बस गालियां निकालनी है, बद कलामियां करनी है। तो बहरहाल जी ये एपिसोड 2 थी, और एपिसोड 3 आ रही है, और बड़ी ख़तरनाक एपिसोड है, समझ आई कि नहीं। और अगर आपने पहली किस्त को देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा। उसके बाद आपने इसको मुकम्मल देखना है, और तीसरी का इंतज़ार करें। और ये सिलसिला इंशाल्लाह बड़ा तवील जाने वाला है, और उलमाए देवबंद और वहाबिया की ये जो गंदी गंदी हरकत है ना, ये हम आपको बताएंगे कि असल ये थे क्या। तो आगे जाके तो हम आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, असल हकायक, असल चीज़ें जो इनकी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं और आज भी ये पढ़ा रहे हैं अपने मदरसों के अंदर, सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। आप जुड़े रहें बस हमारे साथ। हमारे इस चैनल ख़त्म नबूस टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। ये पहले हम बता चुके हैं अपने साबका वीडियोज़ में, आइंदा भी बताएंगे और बड़ी तफसील से बताएंगे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को खड़े करने वाले ये लोग थे। इन लोगों ने खड़ा किया, इन लोगों ने प्रमोट किया था इब्तदा के अंदर। बाद में जाके इन लोगों के ऊपर जब प्रेशर आया, अवामी प्रेशर आया, तो इन्होंने इलाने बरात किया मिर्ज़ा कादियानी से। असल मिर्ज़ा कादियानी को खड़े करने वाले ये लोग थे, और मिर्ज़ा कादियानी भी इसी किस्म का गंदा तरीन इंसान था, क्योंकि वो पला तो इनके मदरसों से ही था ना। वो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के साथ पढ़ा है, और वो सारे हवाला जात तो आइंदा आते रहेंगे, और कुछ पैसे पीछे गुजर चुके हैं, तो वीडियो तवील हो जाएगी। तो बहरहाल खुलासा के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खड़ा तो तुम लोगों ने किया, तुम्हारे मदरसों से ये तरबियत पा के, और बाद में उसने भी वो गंदे गंदे काम शुरू कर दिए थे। हाँ जी, तो बहरहाल जी अल्लाह पाक बद मजहबों से हमें बचाए, और नेकों का, औलिया अल्लाह का अल्लाह हमें साथ ता फरमाए। औलिया अल्लाह को पढ़िए, अपनी तालीम और तरबियत करिए, औलिया अल्लाह को पढ़िए। आप पढ़िए जनाब कशफुल महजूब पढ़िए, आप तज़किरातुल औलिया पढ़िए, आप कीमिया सादत पढ़िए, आप जनाब मुकाशिफातुल कुलूब पढ़िए, आप पढ़िए अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी का फतावा रिज़विया शरीफ पढ़िए, आप इन बुजुर्गान दीन की कुतुब को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है और असल इस्लाम क्या है, और इस्लाम इस शर्मो हया के ऊपर कितनी जनाब वो ज़ोर देता है और ताकीद करता है। अल्लाह मान वाला फीज़, इन लोगों से खुद भी बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। अपने बच्चों को इनके पास पढ़ने के लिए ना भेजें, खुदा के लिए। अपनी इज्जतों का ख्याल करें, अपने बच्चों की इज्जतों का ख्याल करें, अपनी बच्चियों की इज्जतों का ख्याल करें। आगे मैं जाके इनकी जो बच्चियाँ क्या करती हैं और ये इनके काबिरीन बच्चियों के साथ क्या करते रहे, वो भी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। इंतज़ार कीजिए। रब रखा। In our 4 years course, we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet, and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.